Hi everyone. So we are finally recording this, and so you can, watch this whenever you want. I'm doing this conversation with my bestie, Aisha Jabeen. She's another coach that I'm, very fond of, and she's very insightful. I'll let her introduce herself. Hi guys, my name is Aisha Jabeen and I'm an NLP coach. I'm an NLP practitioner just like Sana. I bring with myself 12 plus years of experience in three different industries, including media and education. That's where mostly my work has been in the past. But now I do life coaching and I help people achieve their goals in a specific manner with some specific strategy and timelines. So, what exactly is a coach? A coach is somebody who helps you and assists you in achieving your targets and your deadlines. He's running with you, just not on the track line and outside of it. Hmm. So, that's just a metaphor to help you understand what a life coach does. Yeah. So we were looking at talking about a particular topic, which is very generic, like doing good deeds. Because we were just discussing कि देखो उर्दू का पुराना माकुला है या कह लें बहुत ज्यादा जुमला बोला जाता है कि नेकी कर दरिया में डाल. Um, बाज़ औक़ात, because we both find ourselves to be givers, and we Hmm. both understand that you cannot give from an empty cup, right? तो क्या क्या साइकोलॉजी है इसके बिहाइंड? थोड़ा सा मैं मेडिकली भी लाइक एक इनपुट दे दूं कि जब आप कोई गुड डीड करते हैं तो जो आपके ब्रेन का केमिकल बैलेंस होता है वो शिफ्ट करता है. योर स्ट्रेस हार्मोन गेट्स रिलीज्ड, मतलब जो स्ट्रेस हार्मोन है वो उसकी रिलीज कम होती है, और जो आपके हैप्पी हार्मोन्स हैं या केमिकल्स हैं उनकी रिलीज ज्यादा होती है. वी फील लेस स्ट्रेस्ड. So sometimes good deeds really help us bring out a positive change in within ourselves. But एक like मैं आयशा से बात करी थी कि इंसान कब तक जो है मोटिवेटेड रह सकता है टू कीप ऑन गिविंग, और कब वो पॉइंट आ सकता है जब आप सोचें कि यार ठीक है, कोई बाउंड्री बनाई जाए या अपने आप को कैसे रोका जाए. उर्दू में एक और चीज बोलते हैं मुरव्वत में मारे जाना. So I want Aisha to reflect on that. And then obviously you guys can also post in the comments whatever your reflection is, however you have been doing, or like giving or taking. Are you a giver? Are you a taker? Do comment on that. Aisha, please reflect on this. अच्छा, so सबसे अच्छी बात है ना, that when we reflect, we can somehow comment on what the other person has said, or maybe that triggers another thought process. So for me, before I come to what you have said, it has triggered another thought process, and I would like to comment on that and tell you what that is. देखिए, सबसे पहले तो जब हम बात करते हैं गुड डीड्स की, तो जो वर्ड, क्योंकि मेरा बैकग्राउंड भी लिटरेचर से ही रहा है, तो वर्ड्स की बड़ी इम्पोर्टेंस है. और मैं हमेशा ये समझती हूँ कि हम वर्ड्स का क्या चुनाव करते हैं, इससे बड़ा इफेक्ट पड़ता है, नॉट ओनली ऑन द एक्शन बीइंग परफॉर्म्ड बट ऑल्सो ऑन योर मेंटल, आपकी क्या जो थिंकिंग का तरीका है या प्रोसेस चल रही है, आपकी न्यूरोप्लास्टिसिटी किस तरह की बन रही है, आपके ब्रेन क्या बन रहे हैं, Yes. वो सब वर्ड से रिफ्लेक्ट करते हैं, उसी के थ्रू कनेक्शंस होते हैं. सो जब हम वर्ड की बात करते हैं कि गुड डीड्स, तो प्लीज अंडरस्टैंड, हम भूल नहीं सकते हैं कि देयर इज अ मॉरल अंडरस्कोरिंग अटैच्ड टू दिस वर्ड. Yes. So when good deeds, now good can be, first of all, it is a subjective thing. It is not objective. Good किसी के लिए कुछ भी good हो सकता है. Good किसी और के लिए कोई और type का good हो सकता है, किसी और के लिए कोई और type का. Maybe somebody likes to wear very little clothes or no clothes at all and go out like that, and maybe they find that good. Maybe somebody wants to wear a niqab and wants to cover themselves up, and that is another way of good. But हम यहाँ जिस good की बात कर रहे हैं, हमें उसको पहले define करना बहुत जरूरी है. So usually what coaches try is that they don't get into the religious business, Yeah. the religiosity of things, because we want to keep it inclusive for a wider range of audience. Yeah. However, having
we cannot forget that when we say कि good deeds करते रहना चाहिए, shall we continue to perform good deeds, is actually a moral question, which means that there is goodness associated to it, which again does connect to some belief system or some religion for Exactly, whoever belief that person, system. I would say whatever. belief system. Even the people who say that they're atheists, or they're not believers, non-believers. Okay, even they would do good deeds, and Yes, so it's a belief system. Yes. हाँ. अच्छा, और जो उनका moral system होता है for people who do not believe in a particular religion, understand this, that they take their moral system from what the society holds as up and as good and as moral, and societies have been formed through religious beliefs. Yes. So रिलीजन से जो भी बिलीफ्स आए हैं, उसमें से जो कॉमनैलिटी है और उसमें जिसको अच्छा जाता है, वो हमारे लिए गुड डीड्स होता है ऑन अ मॉरल लेवल फॉर एनीबॉडी, ठीक है. चाहे वो बिलीवर हो नहीं हो. हाँ. You know, for example, being kind to older people or being kind to a child or not kicking a dog on the road is going to be in any person's moral value system a good deed. Like you're not at least hurting the dog, or you're feeding them, you're being nice to the dog. तो इस लिहाज से अच्छा आपने जो kindness is a choice, Aisha. You can choose to be kind, right? Yes, and so that is always a choice. That is I agree with you. So when we say doing good deeds, we're also talking about not just thinking of doing good for someone outside of us, but we are also taking action. So it's a completed cycle of a process. Like you thought of it, you made arrangements about it, and then you executed also. Right? Yes. It takes up your mental energy, it takes up your physical energy as well. देखिए गुड डीड्स के लिए अगर हम इसको समझें, फॉर दोज हु बिलीव, उनको लेके अगर हम any religion that they feel that good deeds are rewarded or good deeds will land you in a good place in your afterlife. So if you believe in an afterlife, so uska jo motivation hoga for a person, let's divide it for people who with a belief system, moral belief system, with a religious belief system, moral, and then I'll come to that part also. So who believe in some kind of religion, wo to good deeds ka unka intrinsic motivation hota hai. So the motivation is intrinsic, and it comes from a place that if I do a good deed, I will get a reward, which could be heaven, Jannah, a good afterlife, being born in a better shape and form in the next afterlife, whatever it may be. Or इस लाइफ के जो हमारे प्रॉब्लम्स हैं, ट्रबल्स हैं, वो कम होंगे ये या उसमें आसानी या ईज आएगी. So that's an intrinsic motivation over there. Now if I look at it from a side view, and also from people who are non-believers in a particular religion, people who just किसी भी reasons की वजह से they're not they're humanists, humanism में believe करते हैं, में और वो जेनेरिक मॉरल गुडनेस में बिलीव करते हैं, they will do good because not only is that making them happy, जो आपने साइंटिफिक बात ब्रेन के अंदर से रिलीज एंड ऑल दैट, but because they also feel it is the right thing to do. ये नहीं है कि this motivation is not there in people of religious beliefs. They will also feel that ठीक है, I will get a reward also. But because वहां पे बिलीफ सिस्टम ने गिव एंड टेक और रिवॉर्ड का पूरा सिस्टम बनाया हुआ है, तो वहां फर्स्ट मोटिवेशन इज ऑलवेज दैट either I will get some kind of a benefit here in this life, but they also do good deeds because अच्छे काम करते रहने चाहिए. So अच्छे काम करते रहने के लिए आपने एक बड़ी अच्छी बात मेंशन की कि you cannot give from an empty cup. Yes. अब मेरे बचा ही नहीं देने को, मैंने इतना दिया कि अब मेरे पास देने को बचा नहीं, या मैं ये फील करती हूँ कि मुझे उस तरह का नहीं मिल रहा, तो क्या मुझे भी अच्छे काम और गुड डीड्स करने चाहिए? ये आपका सवाल था. तो का जवाब
मेरे ख्याल से पर्सन टू पर्सन स्पेसिफिक होगा, हाँ और वो यूं होगा कि अगर आप ये फील करते हैं कि आपकी कैपेसिटी है हाँ टू गिव without being drained, without being exhausted, without being burnt out, without it affecting your mental, physical, emotional, and financial health. अच्छा, फाइनेंशियल हेल्थ भी, We ओके। sometimes do not talk about the financial health. So I was listening to one of your sessions with Dr. Yasir, and मुझे उनका सक्सेस कोचिंग जो करते हैं आपके साथ, that you guys do together, और हाँ मुझे उनका ये जुमला बड़ा कि लोग ये कहते हैं कि पैसे ज्यादा क्यों कमाए, पैसे क्यों कमाए, और भाई अगर देने के लिए भी तो आपको पैसे से ही मदद होगी ना। हाँ अगर आप पैसे, वैसे तो आप मदद किसी भी फॉर्म में कर सकते हैं। देखिए आप मुझे ये कहें कि आयशा ये क्या बात हुई, आई कैन डू अ गुड डीड, मैं रास्ते से जाऊं एंड आई सॉ सम फ्लावर्स एंड हाँ आई पिक्ड अप अ for you, and I came to your office and I said, here Dr. Sana, here's a bunch of flowers for you. हाँ, I did a एग्जैक्टली, good deed. हाँ, I light you because probably you were not feeling so well. हम्म, However, वो चल के आना, वो कपड़ा पहनना, वो गाड़ी का पेट्रोल पे भरना, वो हाँ जिस माली शख्स ने वो पैसों से ग्राउंड में लगाए थे फ्लावर्स, हाँ, वो लाना, all of this will always have a financial underscoring as well. हम या, इसको डिनाई नहीं कि बगैर पैसे के, बगैर मॉनेटरी इन्वॉल्वमेंट के हम्म, आप शायद उसको रिकग्नाइज इमीडिएटली ना करें क्योंकि पैसे नहीं निकल रहे. It's not like I came and I gave you my credit card, या, and it's like I gave you some bunch of money, but हम्म, I still is involved. या, वो कहते हैं ना, खाने को नहीं होगा तो और क्या करोगे, मतलब पहले even if I have the strength to come हाँ, and walk to you or come, I mean I'm alive, so I'm feeding myself. This was my time in my life that I invested in doing a good deed for you, for somebody else. फॉर समवन एल्स, So या, इसमें जैसे आपने बात की कि ना सिर्फ इंसान की दिमागी, नॉट ओनली ब्रेन एनर्जी, फिजिकल एनर्जी, पर आपकी फाइनेंशियल एनर्जी भी जाती है. हाँ, इट विल ऑलवेज, ऐसा नहीं होगा कि ये नहीं हो सकता. सो हम्म, पर्सन टू बात कर रही थी कि वैरी करता है. हमें ये देखना है कि इट शुड नॉट कम इनटू अ फॉर्म ऑफ अब्यूज. नाउ अब्यूज हाँ. इज टू. Aisha, before you talk about that, tell me something. You said कि एक moral obligation कभी feel हो जाती है, different जो believers हैं उनको ये भी after life वाला भी होता है motivation, ठीक है, intrinsic motivation होती है. मुझे ये बताओ कि what how would you reflect on wanting to do good, ठीक है, because it brings significance, one of the human needs, ठीक है, it brings Yes. significance, and another human need is the need to contribute, so it also caters to that need, ठीक है, but once there is मतलब you do contribute but there is no acknowledgement, would you feel disappointed, would you feel like you you should not do it anymore or you should not do it further, like are there any, for a giver, dete 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 chalo, the cup is still not empty, the Hmm. cup is still not empty, but Hmm. आप और आपको अच्छे करते रहना है और आप चाह रहे हैं कि आप अच्छा करें और आप चाह रहे हैं कि जिस तरह आप ग्रो कर रहे हैं और आप बेहतर हो रहे हैं इस तरह दूसरे भी ग्रो करें और बेहतर हों, but Hmm. you as a coach understand that you cannot force anyone. Coaching is a do with process, right? Hmm. You can never force anyone. So how would you say that, because the Yes. services we offer as a coach, we do have the best intention in mind, right? And we do say कि as a disclaimer कि हम आपके साथ साथ कर रहे हैं, हम आपको facilitate कर रहे हैं, ठीक है, but the जी. responsibility of applying that learning is on the other person, right? हम सिखा रहे हैं, हम बता रहे हैं, हम वो टूल्स दे Yes. रहे हैं आपको, हम वो सक्सेस माइंडसेट दे देंगे या ग्रोथ माइंडसेट दे देंगे, माइंडसेट शिफ्ट कर देंगे फ्रॉम व्हाट वाज देयर टू अ मच बेटर वन, ठीक है, बट क्या ये खाली कहने से या हमारे हमारे इम्पोज करने से तो नहीं होगा, द अदर पर्सन नीड्स टू विल इट, राइट? सो डूइंग दिस एज अ गुड डीड, as a coach, when we are reaching out, a coach
comes into this field also because there is a pull, there is a purpose in life to give. It connects with us, right? We want to see others grow. We're not those people who would be jealous, or we're not trained to be jealous. We are trained to be happy for others because that's how we grow and we flourish, right? So, as coaches, we come across very क्या कहना चाहिए लो एंड एट इफेक्ट को कैसे बोलेंगे आयशा कि वो लोग जो स्ट्रगल कर रहे होते हैं with their negative thinking, with their negative emotions, be it anger, be it anything. ठीक है, सो उनको जब आप अपनी तरफ से एज अ गुड डीड आप समझाएं, बताएं कि जी look at us, we're doing better, and we would really wish that you would do better too, and they still don't take it. We can't impose ourselves. Shall we stop trying? Shall we not offer the good help because someone else might need it and we can invest the time there? What are अच्छा your thoughts on that? Now we're talking as a अच्छा coach, na? Because we're दो givers, we're out there to help, right? डिफरेंट पहलुओं को देख रहे हैं हम, दो डिफरेंट एस्पेक्ट्स को देख रहे हैं. ठीक पहले मैं है, कंप्लीट करना थॉट प्रोसेस तुम फ्रॉम द अब्यूज की बात प्रीवियस करी थी, पॉइंट. हाँ. हाँ, बस उसके बाद देन प्लीज आस्क मी पर्टिकुलर क्वेश्चंस अगेन एंड ठीक देन है, आई विल कंटिन्यू. ऑलराइट. ठीक है, बिकॉज आई ट्रैक. तो हम जब अब्यूज की बात कर रहे थे कि अब इसमें अब्यूज के दो पहलू हैं. ठीक है, पहला पहलू वो ये है कि आपकी सेल्फ इन्फ्लिक्टेड अब्यूज है. सेल्फ इन्फ्लिक्टेड. सेल्फ, हाँ, आई एम गोइंग टू कम टू दैट. सेल्फ इन्फ्लिक्टेड अब्यूज है. और सेकेंडली somebody else is abusing you. ओके. Now क्या होता है? फर्स्ट ऑफ ऑल, पहले कोई और आपको अब्यूज कर रहा है, मतलब सिर्फ गाली देना, किसी को बुरे लफ्ज कहना अब्यूज नहीं है. अब्यूज तरीका है कि कोई शख्स है, हम जानते हैं दिस पर्सन इज अ गुड ह्यूमन बीइंग, दिस पर्सन ट्राइज पीपल, गोज आउट ऑफ देयर वे टू हेल्प पीपल. अब हम उसको जानबूझकर हम उसको समझ रहे हैं, ये इसका एक पैटर्न है, ये इसका एक तरीका है, ये ऐसा ही है, ये शख्स या ये लड़की ये लड़का ऐसा ही है, और हम उसे जानबूझकर इस्तेमाल करें. यार ये तो दे दो, अच्छा, ओके. यार तो यार कैन यू गेट मी दिस, ओ कैन वी गो आउट हियर, हमें यहाँ ले जाओगे, हमें ये दे दोगे, टेकन हमें फॉर ये खिला ग्रांटेड दो. वाली बात कर रही हो ना तुम? हाँ, नहीं, अब इसमें क्या हो गया, एक होता है नीड बेस्ड अब्यूज. का लफ्ज के लिए मैंने इस्तेमाल जानबूझ के किया ताकि लोग इस बात को समझ सकें, जो हमारी ऑडियंस है, व्हाट एग्जैक्टली इज अब्यूज. अब्यूज इज लाइक आप अपना एटीएम कार्ड लेके उसमें डाले मशीन में, और जितने आपको जरूरत हो आप उसमें से पैसे ड्रॉ करें. और फिर यह है कि रीजन आप अपनी सेविंग्स को खराब करें और कॉन्स्टेंटली डाल के हर 2 मिनट में निकालें, हर 2 मिनट में निकालें. इट्स अब्यूजिंग योर सेविंग्स. सो अब्यूज यहाँ पे गाली के सेंस में नहीं है, बट अब्यूज का मतलब है कि जो उसका राइटफुल, टेकन फॉर ग्रांटेड, टेकन फॉर ग्रांटेड, मिस यूज करना, राइटफुली इस्तेमाल नहीं करना, और उस सारी प्रोसेस को या उस ह्यूमन बीइंग को उसकी गिवन रिस्पेक्ट ड्यू जो है वो उसको नहीं देना. मैं अगर अपने एटीएम कार्ड 15 मिनट में 10 दफा डालकर 15 दफा या 10 दफा पैसे निकालूंगी ना, तो आई एम अब्यूजिंग माई राइट टू हैव एन एटीएम कार्ड if I do not need. But if I need that amount, खुदा ना खास्ता family member in the hospital, somebody is going through some really difficult times and I need to draw that money, that's valid, that's understandable, उसी के लिए जमा किया था, ठीक है. But if I'm abusing it, then maybe I don't deserve to have it. Then I don't understand how to use an ATM card, when to use an ATM card. So what people tend to do, sometimes we are abused by other people. जब उन्हें ये पता चल जाता है ना कि ये शख्स अच्छा इंसान है, ये एक अच्छी औरत है, ये लोगों की मदद करता है, तो आओ इससे और निकलवाएं, आओ इसको और इस्तेमाल करें, आओ हम इससे और बेनिफिट्स कैसे ले सकते हैं. ठीक है, एक होता है आपकी, एक होता है you have all of that but you're just fishing for compliments, for things, for material gains in any way. और even अगर उससे आके आप कोई फिजिकल मुशक्कत, कोई गरीब आदमी है, ठीक है, वो इंडेटेड है, आपके साथ कभी उसने काम किया, आपके घर में कोई कंस्ट्रक्शन के उसमें हेल्प की, अब आप उसको बुला, आओ ये झाड़ू तो लगा दो, आओ ये तो कर दो. नाउ यू हैव अ मासी और यू हैव अ मेड, बट वो ऑब्लिगेटेड फील करेगा.
Exactly. So what are you doing? You are abusing your relationship with that person. Yeah. आप उसे इस्तेमाल कर रहे हैं जब हाँ. आपकी नीड नहीं, ठीक है। एक होता है हेल्थी, भाई मेरे साथ हाथ लगा दो, मुझे ये किताबों का डब्बा ऊपर तक लेके जाना है, मैं एक फ्लाइट ऑफ स्टेयर्स हाँ. नहीं उठा सकती, some of my books in a box. हाँ. So then I will request this person who could be my relative, could be my friend, could be even works at my हाँ. place. और एक ये हाँ. कि मैं उससे धड़ाधड़ काम कराऊं, जाऊं, कराए जो मैं, that's abuse. ठीक है। Now इधर भी वो गुड डीड्स कर रहे हैं, तो रिमेम्बर इसमें इट्स ऑल कनेक्टेड कि आप गुड डीड्स को भी दूसरा बंदा अब्यूज कर सकता है। व्हाट इज सेल्फ इन्फ्लिक्टेड अब्यूज? सेल्फ इन्फ्लिक्टेड अब्यूज कम्स व्हेन आपको पता है कि सामने वाला आपको इस्तेमाल कर रहा है और आप उसे करने दें, आपको यूज कर रहा है, आप बाउंड्री ना और बनाएं, आप उसे उसे करने करने दें. दें, आप ना बनाए। एग्जैक्टली आप उसको करने दें। और आप इसको अब्यूज क्यों कह रहे हैं? नाउ व्हाई आई एम सेइंग द वर्ड अब्यूज, बिकॉज आप अपनी रिस्पेक्ट नहीं कर रहे हैं। दिस इज सेल्फ इन्फ्लिक्टेड अब्यूज। आप अपने आप से मोहब्बत नहीं करते, आप अपनी इज्जत नहीं करते, आप अपने आप को वैल्यू नहीं करते, वैल्यू नहीं करते. इसीलिए आपको लगता है कि मेरा ना होना या मेरे पास किसी शय का होना या मेरी शय का ना होना कोई मायने नहीं रखता, एंड लेट इट वेस्ट अवे। नाउ इसमें एक और बात है, इफ आई नो somebody genuinely needs my help, उसको मेरी मदद की जरूरत है, हाँ. I will go out of my way or I might go and help this person, ठीक है। but at cost? What जब cost? हम गुड डीड्स की बात कर रहे हैं, this is a very important question. Do good, but at what cost? Is हाँ. it costing you your happiness? Is And it your mental peace. your mental peace? Is it exactly your financial आपकी हैप्पीनेस, आपकी फाइनेंशियल हेल्थ, जिससे कि आपके फॉर एग्जांपल आपके बच्चों की फीस गई नहीं है, ठीक है। हाँ. और आप चले हैं, मैं तो जी नेक काम कर रहा हूँ, उसकी फलां की बेटी की शादी है, मैं उसमें, आप कंट्रीब्यूट करें, मगर आपने अगर पहले अपने बच्चों की फीस नहीं दी है, तो योर फर्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड प्रायोरिटी इज टुवर्ड्स योर चिल्ड्रन, जिनको आप इस दुनिया में लेके आए हैं। हाँ. अच्छा, इसमें भी फिर एक तरीका है, अगर आप करना चाहते हैं तो ये नहीं हो सकता कि आप अपने सारे वो जमा खर्ची या पैसे या जो भी आपने निकाले थे वो उधर ही डाल दें। आप बैलेंस करें, मे बी यू कैन गिव 2% देयर और 5% देयर और 10% एंड कीप द रेस्ट फॉर योर फैमिली। ठीक है। तो यू अंडरस्टैंड कि गुड डीड को हमेशा गुड तब माना जाएगा सना, हाँ. जब आपके तरफ जाएगी बगैर जाए खर्च के। सो यू हैव अ, समझो एक तरह का पॉट है, उसमें आपका एनर्जी, पैसे, सब कुछ है आपका, दिस इज हु यू आर एज अ बीइंग। अब इसमें से निकलती रहती है, थोड़ी 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 निकलती रहती है। तो जब आप इसको निकालेंगे ना, तो यू हैव टू बी माइंडफुल, कहाँ निकाल रहे हैं कितना निकाल रहे हैं, हाँ. क्यों निकाल, Because the energy is finite, right? It's absolutely beautiful. मेरे नजदीक the only energy that is infinite is God. Yeah. अल्लाह से कहते हैं ना, आप गॉड से या अल्लाह से या आप जिसमें भी बिलीव करते हैं, आप अपने प्रेयर्स करते हैं, नमाज जैसे हम पढ़ते हैं, तो हम क्या कहते हैं, अल्लाह तू हमें दे दे। हाँ. अल्लाह में आप हमें ये आवाज दें। और अल्लाह ताला क्या कहते हैं, मुझसे मांगो मैं तुम्हें दूंगा। हाँ. और उसके कोई कमी नहीं होगी। बट एज ह्यूमन बीइंग्स हमारे खजाने लिमिटेड हैं। हाँ. जितना निकालोगे उतना ही वापस अंदर डालना भी, वरना ये खजाना रहेगा नहीं। अच्छा, डालने की बात से मुझे you know something that I shared with you that my brother said, that I was a different perspective for me, but it was interesting. What he mentioned was, his name is Ehsan Haqqani, and he's also very insightful. And उसका total मसला वहां पर आता है जहां वो, if he goes low then he goes very low, but when he's talking he makes a lot of sense. So he said that Allah Mia never, when you do something for someone, अल्लाह मियाँ उस someone को उस काबिल नहीं करते कि वो आपको immediately उस वक्त return कर सके, but
he has his ways, someone else will do something for you. So it's like paying it forward. I do something good for you and you do something good for someone else. Like it becomes a chain, like a dominoes effect, you can say, दूसरों के लिए करना. So सही. when I think of that, I feel like अच्छा ठीक है, मैंने किसी के लिए अच्छा किया तो कोई मेरे लिए अच्छा कर देगा. It stops me from thinking कि यार मैंने इसके लिए अच्छा किया और इसको देखो ये acknowledge भी नहीं करता. What do you think? And I can be okay, sorry. We had to cut that in between because I received a call and I had to take that call. All Sorry. right. तो सना बहुत ही अच्छा पर्सपेक्टिव है आपके ब्रदर का, जब उन्होंने ये कहा कि जो है अल्लाह ताला उस शख्स से ही जरूरी नहीं है कि आपको रिटर्न करे. उनका तो ये है बिलीफ आपके ब्रदर का कि वो करता ही नहीं है, वो शख्स रिटर्न कहीं और से होता है. हाँ. मेरा इसके बाद ये है कि इट्स पॉसिबल कि वो शख्स कर सके, हाँ. मगर ये रेयर उसकी रेयर कैपेसिटी और rare. आपकी कैपेसिटी का फर्क होगा. जी, मैं इसको कहूंगी कि मोस्ट प्रोबेबली 100 में से ये 1% ऐसे लोग होंगे जो कभी उसको वापस रिटर्न कर सकेंगे. उसकी हाँ, वजह बिल्कुल सही. पॉसिबल बहुत ही माइन्यूट है. सो आई ऑलमोस्ट एग्री विद योर ब्रदर ऑन दिस 100% कि ये पॉसिबल नहीं है. उसके पीछे 2-3 रीजंस है. देखिए, एक होता है फॉर एग्जांपल आपकी मजबूरी का वक्त था, आप किसी वक्त किसी जगह फंसे हुए थे, आप मेरे पास आई, आपने मुझसे कहा कि आयशा है कैन यू लेंड मी सम मनी. आई सेड you need, and you said okay, I need around 5 lakh rupees. ठीक है. And I lakh rupees, I said here you go. ठीक है, आप अपना काम कर लो. अच्छा, अब क्या हुआ, many years passed by. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल उस 5 lakhs की वर्थ, रुपी वैसे तो आजकल डाउन जा रहा है, इन्फ्लेट हो लेकिन चुका होगा ना सब. हाँ, कि या तो ये और नीचे चला गया है या ये बहुत बढ़ गया है. हाँ, दोनों चीजें हो सकती हैं. इन बोथ केसेस तो उस वक्त के 5 लाख रुपीस की वैल्यू थी, अगर आप मुझे 10 साल बाद रिटर्न करने का सोचेंगी भी तो हाँ. वो नहीं करेगा. एम आई राइट? या ओके. दूसरी बात, आपका जो पर्टिकुलर इंस्टेंस था जिसके लिए आपने पैसे मांगे, ठीक है, फॉर इट वाज किसी के घर में आपके घर में खाना नहीं था या आपको अपनी ग्रोसरीज के इंतजाम करना था अगले 3 महीने का, 4 महीने का, ठीक है, या आपकी बेटी की शादी थी, आपने उसमें पैसा लगाना था, या आपकी कोई पेरेंट एलिंग था, मदर आपकी या फादर एलिंग थे और आपने हॉस्पिटलाइजेशन का कुछ. हाँ, बिल्कुल. अब अगर आप मुझे रिटर्न करना चाहेंगे तो एक तो मनी डजंट होल्ड द सेम वैल्यू. Of course. I'm not even about 10 years, I'm talking let's say 5 years or 3 years. It won't hold the same value. दूसरी बात ये, मेरी शायद वो वाली जरूरत ही ना हो जितनी आपकी डायर थी जब मैं आपके लिए खड़ी थी. क्या पता वो ट्रांसलेट हो जाए किसी और चीज में. एग्जैक्टली. तो मेरा पलड़ा फिर भी भारी रहेगा इन टर्म्स ऑफ डूइंग दैट गुड. मैं यहाँ अपने बारे में बात नहीं करी फॉर द ऑडियंस, मैं एग्जाम्पल के तौर पे बात हाँ, बिल्कुल. पलड़ा उस शख्स का फिर भी भारी रहेगा जिसने उस वक्त आपकी मदद की जब आपकी जरूरत थी. हाँ. अच्छा, तो एक तो ये हम मॉनेटरी ही बात कर रहे हैं मोस्टली बिकॉज हम ये बात को एम्फसाइज करना चाहते हैं, एटलीस्ट मैं जरूर करना चाहती हूँ कि लोग जो ये कहते हैं कि अच्छे नेक काम करने के लिए पैसों की जरूरत नहीं होती. सो मैं इससे अब डिसएग्री करने लगी हूँ. मुझे पहले लगता था कि जरूरत नहीं होती, लेकिन अब मुझे लगता है कि होती है. We have to balance. We have to keep a balance, na? We have to keep a balance. Because money is invested it is our currency. It's also how I say, Aisha, that when I'm investing my time with you or with anyone, when I'm investing my time, for me, time is money. For me, because, and for you as well, because you're a coach now. When we're discussing something, we're trying to, give people a gift of perspective. Right? This talk is a gift, right? This talk, exactly. our time together, this talk, it's not just a gift for me and you. Like, it's whoever the audience is, if they can learn something and if they can, apply that learning in their life and become better, this is a gift for them, isn't it? It is. तो
when you and I are giving time to somebody, हम उस टाइम में कोई क्लाइंट भी ले सकते थे, एग्जैक्टली, ले सकते वो हम ट्रांसलेट हो जाता है ना, फाइनेंसेस में ट्रांसलेट हो जाता है। वो फाइनेंशियल बन जाता। अच्छा, इसके अलावा अगर मैं ये टाइम पे सो रही थी, हाँ, आई वाज, ठीक है, आई एम स्टिल इन्वेस्टिंग इन माय हेल्थ, इन माय हाँ, वेल बीइंग, एग्जैक्टली, एंड आई एम गिविंग आराम का टाइम टू यू और टू एनीबॉडी हु नीड्स माय हेल्प। या सिमिलरली अगर अगर मैं किसी के लिए, अपने दोस्त के लिए, अपनी सहेली के लिए, अपने क्लाइंट के लिए, किसी के लिए भी टाइम निकालती हूँ, ये मेरा फैमिली टाइम है। आई हाँ, कुड स्पेंड दिस विद माय हस्बैंड, आई कुड बी विद माय फैमिली मेंबर्स, बट आई या एम गिविंग यू माय टाइम। सही है। सो इवेंचुअली वी हैव कम टू दिस कि हमारे पास हर चीज फाइनाइट है और उसी हाँ, में से हम देते हैं। हाँ, और अगर जब तक रिटर्न ना हो तो क्या हम देते रह सकते हैं? ये भी आपका एक सवाल था। हाँ, इंटरनल मोटिवेशन या इंट्रिंसिक मोटिवेशन खत्म क्यों होती है या खत्म हो सकती है पहले तो, एंड उसको लाइक आई वुड से कि हमें रिवाइव्ड रखना चाहिए, करते रहना चाहिए। दैट्स व्हाट वी प्रीच, राइट? वी नीड टू walk the talk. We need to walk the talk, right? We do want to keep giving, but there has to be some kind of incentive maybe, क्योंकि हमें तो अल्लाह मियाँ ने भी रिवॉर्ड का बोला हुआ है ना। सो एज अ बिलीवर आई वुड से कि मुझे पता है ना मैं गुड डीड्स करके जन्नत कमाऊंगी, तो मैं गुड डीड्स करना चाहूंगी, बट एक इंटरनल मोटिवेशन कम होती है या खत्म होने लगती है when you do not feel rewarded, when you don't have an incentive. अच्छा देखो, सच तो अभी आपने अल्लाह मियाँ वाली बात की, या मेजर रिलीजन्स में होता है कि यू डू गुड डीड्स यू विल बी रिवॉर्डेड। हाँ, तो ये भी ऊपर वाले ने क्यों बोला? कोई भी चीज, एक तो मैं हमेशा आपको कहती हूँ, हाँ, आपको बिला याद वजह होगा नहीं। मेरी या कि बिला वजह देयर इज ऑलवेज अ रीजन फॉर इट। हाँ, तो देखिए, पहली बात तो अभी जो आपके ब्रदर एहसन ने की कि वो शख्स कभी आपको दे नहीं सकेगा वापस उस तरह, तो मैंने आपको एग्जांपल्स बताया कि वो क्यों नहीं दे सकेगा। हाँ, ठीक ठीक है, है, उस तरह नहीं दे सकेगा, पैसे की वैल्यू चेंज हो चुकी होगी, आपकी उस बिल्कुल, तरह की नीड, हाँ, वो इसलिए भी नहीं दे सकेगा क्योंकि देन अल्लाह ताला आपके गुड डीड को ऊपर और गुड कैसे रखेगा? अगर वो हाँ, बैलेंस आउट हो गई और हाँ, इक्वल रिटर्न हो गई, तो यू गिव द अदर पर्सन रिटर्न एंड इट कैंसल्ड आउट। हाँ, ओके, बिकॉज यू सी, हमें ये कहा गया है, आपने सोनिक द हेजहॉग की गेम खेली है कभी ऑन द कंप्यूटर और ऑन सेगा और Nintendo? Great. या So you know Sonic is running and he's running in circles and quickly, and he's gaining as many rings as he can. या सही है। We play Mario Brothers, we are constantly jumping the Mario यस, only ताकि हमें ज्यादा से, यस, at the at the end of that level we see a monster or some bad guy or something that we got to fight and get on to the next level. यस, Good deeds continuous रखने हैं ताकि हम नेक्स्ट लेवल पे जाएं, ना सिर्फ अपनी जिंदगी की, अपने सेल्फ एक्चुअलाइजेशन की, बट हाँ, स्पिरिचुअल। यस, तो ये लेवल्स है। अच्छा, अब आपका जो बात थी कि ये इंट्रिंसिक है और ये खत्म हो जाए तो फिर क्या करें? तो देखिए, अल्लाह ताला को भी पता था कि ह्यूमन बींग्स फाइनाइट है, एनर्जी फाइनाइट है, कितना भी अच्छा होगा मेरा बंदा, वो एक हाँ, दिन या तो फ्रस्ट्रेट हो जाएगा, आई जस्ट नोबडी केयर्स अबाउट मी, मैं कितना करूं या क्या, मैं कहाँ हाँ, से हाँ, लाऊं, मैं जैसे नहीं कर रहा। प्रॉफिट्स भी अल्लाह मियाँ से दुआ करते थे ना, प्रॉफिट्स भी तो और अल्लाह मियाँ से दुआ करते थे। अल्लाह मियां ये क्या हो रहा है, मतलब दे यूज्ड टू टॉक आल्सो। या तो अल्लाह ताला ने इसी वजह से हमारी बुक के अंदर, कुरान के अंदर हमें बताया है दैट जो तुम नेक काम करोगे विल गेट योर रिवॉर्ड। नंबर वन, हम्म, हम्म, आई विल डू बेटर देन व्हाट आई टेक फ्रॉम यू। हम्म, ठीक है, एंड जिस तरह तुम करते जाओगे तुम्हारे लेवल अप होता जाएगा, स्पिरिचुअल ग्रोथ होती जाएगी, लेवल अप लेवल अप लेवल अप। सो ही अंडरस्टैंड्स। हम मोटिवेशन को जब देखते हैं ना इंसान, आई वुड लव टू डू दिस टॉपिक विद यू सम टाइम, कि इंट्रिंसिक भी है और एक्सट्रिंसिक भी है। एक्सट्रिंसिक भी है। लेट्स डू इट नेक्स्ट सेल्फ टाइम। ड्रिवन, Let's figure हाँ out नेक्स्ट, दोबारा से कैसे कर सकते हैं, because otherwise we'll just record like this and we'll put it up, so we can plan it and do it more properly instead of like struggling through different social media platforms and then doing this, because we got to conclude very quickly.
तो खैर उस वक्त मैं आपको ये बता रही थी कि जो है अल्लाह ताला भी ये बात को समझता है. नाउ जब हम गुड डीड्स की बात करते हैं, आई थिंक वी हैव लिटिल टाइम लेफ्ट नाउ. We need हाउ to मच wrap टाइम डू up. वी हैव? 4 minutes. We need to wrap up. Okay, give me 5. हाँ I'll हाँ just quickly. हाँ हाँ. Okay. तो सना, हम गुड डीड्स की बात जब तक नहीं कर सकते हैं जब तक हम बैड डीड्स की बात नहीं करते हैं. Hmm. Need to keep this binary thing there. तब हाँ हम समझ. तो जो लोग गुड डीड्स करना चाहते हैं और जो चाहते हैं कि मैं गुड डीड्स करूं जिंदगी में, वो सबसे पहले तो अपना सेल्फ असेसमेंट करें. ठीक है. सेल्फ अवेयर कि होना जरूरी है, लाइक ऐसे. अवेयर होना बहुत जरूरी है. पहले तो वो ये देखें कि क्या मैं बैड डीड्स कर रहा हूँ या कर रही हूँ. कि मैं खुद नार्सिसिस्ट हूँ, मैं खुद साइकोपैथ हूँ, मैं खुद मैं वेयर एम आई दूसरा एट, वेयर आर यू. मैं हाँ, अगर मैं अगली गुड पर्सन को सिर्फ टेक 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 करूं और रिटर्न में कोई गुड या कोई गिव ना करूं, हाँ देन इवेंचुअली मैं अगर कोशिश भी करना चाहती, वो नहीं आ पाएगी इंटरनल मोटिवेशन. हाँ सो आई हैव टू ब्रेक द पैटर्न. आई हैव टू इंश्योर कि मैं फर्स्ट बैड डीड्स को लिमिट करूं हाँ ताकि मैं गुड डीड्स के रेडी हूं. हाँ, बिल्कुल सही. सही है. हाँ अच्छा. और इसीलिए आई वुड से कि फर्स्ट हमें ये देखना चाहिए, आर वी अब्यूजिंग एन अदर पर्सन्स ओके. गुडनेस. हाँ ओके. अगर हम वो नहीं कर रहे हैं, देन मे बी वी कैन बी अ लिटिल सेल्फ अश्योर्ड कि हाँ, हम भी एक अच्छे इंसान है एंड वी आर डूइंग गुड डीड्स. बिकॉज एटलीस्ट सना, ये बड़ा एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है. जरूरी हाँ नहीं है कि मैं जाके एक्शन परफॉर्म करूं. बाय नॉट परफॉर्मिंग इन एक्शन, जो आपने शुरू में बात की थी, एनर्जी डिप्लीट होना, माइंड का हाँ अंदर दिल घबराहट हो रही बहुत चीजों से, मगर आप वो काम कर रहे हैं. तो हाँ. अगर मैं को देखूं कि कोई मेरी तरफ हम्म. कोई जो कहे, कोई बुरा लफ्ज कहे हाँ या मुझे यूज करे, और हाँ मैं कोशिश करूं हाँ कि मैं उस बुराई का या उसके तंज का या उसकी गलत बात का या गलत एक्शन का हाँ गलत से जवाब दूं. मैंने अभी ये नहीं कहा कि उसका जवाब अच्छे से दूं, वो एक हाँ अलग बात है. वो पे सेल्फ अब्यूज में भी आ जाता है अगर उसकी कोई बाउंड्री ना हो. हाँ, बिल्कुल. लेकिन आप ही ना दूं, फॉर सम टाइम आई टेक अ ब्रेक, आई डोंट रिस्पॉन्ड. Breaks help, I even think. even that is being a good person, is doing a good deed. हाँ, instead of responding badly, we can take a pause. We can utilize Yeah. that pause to grab some learnings. We can utilize that pause to self-reflect. हम क्या कर रहे हैं? We can utilize that pause to rethink what the words we need to choose. Like you said, obviously words do have an impact. 7% words, and then tonality. The rest is tonality and how we use our body language. So yes, taking a break is a good idea, but utilizing that break is important. Because कुछ लोग isolation में चले जाते हैं and कुछ लोग respond नहीं करते and they just shut down or shell up. Okay, Yes. but if they're not doing the internal work, then Mm. that break is of no use. They need to do that React. internal work. Respond React. करना है, react नहीं करना है. Exactly. हाँ, thank React you for नहीं. saying that. हाँ, good. So Aisha, this was so lovely, and let's do this once a week because I think we have so many things to say and so many things to talk, and we have such good talks ourselves कि अब हम हमारी audience भी जो है वो इससे मुस्तफीद हो सकती है. सही बोला ना मैंने? ठीक है ना? So yeah, so let's do this weekly, and we'll also look for comments and suggestions from the audience on basic topics Yes. that we can talk about and enlighten them from a coach's perspective as well, right? Anything you want to say, last few words before I end the call? I just want to say कि जब आप good deeds करने दूसरों के लिए, हाँ, तो आप अपने लिए भी good deeds करें. of course उसकी self वजह love है होना चाहिए because ना. जो good लोग होते हैं,
जो गुड ह्यूमन बींग्स होते हैं, जो गुड लोग होते हैं, वो जो दूसरों के गुड लिए डीड्स ज्यादा करते कर हैं, जाते हैं। हाँ, और वो ज्यादा के अलावा वो जब जिस प्लेस से कर रहे होंगे, द प्लेस हाँ इनसाइड ऑफ देम अ गुड प्लेस, लेकिन सामने से वो रिस्पॉन्स नहीं आएगा, हाँ। सामने से वो चीज नहीं आएगी, शायद हम्म ज्यादा नहीं आती, ठीक हम्म है। तो ऐसे उसमें मायूसी से यार अब मैं नहीं करूंगा, हाँ या बैड और सैड या डिप्रेस्ड फील करने से, या एंशियस या एंगर फील करने से बेहतर है कि थोड़ा कीजिए, और थोड़े से पहले अपने लिए थोड़ा कीजिए, ताकि आप सेशिएटेड हो, यस, ताकि फुलफिल्ड आपको हो, फील बिल्कुल। हो लव। हाँ, बिल्कुल सही। थैंक यू सो मच और आशा। ऐसे लोगों को चुनिए जो शायद कर नहीं सकते, लेकिन ग्रेटिट्यूड दिखाते हैं, बिकॉज ग्रेटिट्यूड बहुत अच्छा है, और खुद भी हाँ ग्रेटिट्यूड प्रैक्टिस कीजिए। हाँ, बिल्कुल, दैट्स ऑल। बल्कि एग्जैक्टली एग्जैक्टली, आई so totally agree with what you have to say. We will also talk about gratitude sometime. That's one of my favorite topics to talk about. यस, Okay. Chalo, you take care, सेम and हियर। everyone, please join both of us. Next time, we welcome all your suggestions for topics. We welcome, comments, and follow us. And if you think somebody could really benefit from taking coaching from us, please do refer. Thank you so much. Allah Hafiz.